Good morning, students. First of all, Brahmanad. Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Last class we discussed the theory, fundamental theory and standard formulae of indefinite integral. Okay, today we are going to discuss the application of indefinite integral using the standard formulae. Okay, again repeat the last class. One, some standard formula of integration. One integration 0 dx is equal to constant. 2 integration 1 dx is equal to simply x plus c. 3 integration x to power n dx is equal to x to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, condition n not is equal to minus 1. 4 integration a to power x dx is equal to a to power x divided by ln a plus c. Some restriction for a is greater than 0 and a not is equal to 1. 5 integration e to power x dx is equal to e to power x plus c. 6 integration 1 by x dx is equal to ln mod x plus c. 7 integration sin x dx is equal to minus cos x plus c. 8 integration cos x dx is equal to sin x plus c. 9 integration sec square x dx is equal to 10x plus c. 10 integration cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. 11 integration sec x into 10x dx is equal to sec x plus c. 12 integration cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. 13 integration mod x dx is equal to x into mod x by 2 plus c, condition x not is equal to 0. 14 integration 1 by root 1 minus x square dx is equal to दुईटा आसो sin inverse x plus c और minus cos inverse x plus c, condition minus 1 less than x less than 1. 15 integration 1 by 1 plus x square dx is equal to ये भी tan inverse x plus c और minus cot inverse x plus c, x belongs to r. 16 integration 1 by x into root x square minus 1 dx is equal to sec inverse x plus c और minus cosec inverse x plus c. Here mod x is greater than 1. 17 integration e to power a ln x dx is equal to integration x to power a dx is equal to x to power a plus 1 divided by a plus 1 plus c. These are the some standard formulae of integration. Again repeat this. Okay, next one is your algebra of integration. Next one is your algebra of integration. Algebra of integration is your first integration k into fx dx is equal to k into integration fx dx. Second one, integration fx plus or minus gx whole into dx is equal to integration of fx dx plus or minus integration of gx dx. Okay, next
Next is like comparison between differentiation and integration. Comparison between differentiation and integration. Both differentiation and integration are operations on a function. Both differentiation and integration are operation on functions. Similarly, the differentiation, the derivative of a function when it exists, the derivative of a function when it exists is unique, whereas the integral of a function is not unique if it exists. Okay, so comparison between or some notes, some facts of differentiation and integration. Differentiation and integration. First point, differentiation and integration are both differentiation and integration are both operation on a function, on a functions. Okay. Second point, the derivative of a function, the derivative of a function, if it exists, is unique, whereas the integral of a function, if it exists, is not unique. Okay. Next, the differentiation and integration both satisfy property of linearity. The differentiation and integration both satisfy property of linearity. Means d by dx of fx plus or minus gx is equal to d by dx of fx plus or minus d by dx of gx. Similarly, d by dx of integration of fx plus or minus gx whole into dx is equal to integration of fx plus or minus integration of gx into dx. This is the property of linearity. 4. The process of differentiation and integration are reverse of each other. The process of differentiation and integration reverse of each other, are reverse of each other. Means inverse process of differentiation is known as integration. That is d by dx of 10x is x square x, whereas integration of x square x is 10x. Okay. Next, 5. The derivative of a function is found at a point. The derivative of a function is found at a point, whereas integration of a function is found on an interval square bracket AB. Okay.
The derivative of a function is found at a point, whereas integration of a function is found on an interval square bracket ab. Number 6. All functions are not integrable. All functions are not integrable. 7. The integral of a function is not unique. The integral of a function is not unique. 8. When a polynomial function of degree n is integrable, then the polynomial of a degree is increased by 1. When a polynomial function of degree n is integrated, then the degree of the polynomial is increased by 1. Suppose x square, तो इंटीग्रेशन ऑफ x square is sq by 3 plus c. तो degree is 3. Degree of x is 3. ax square plus bx plus c is a polynomial of degree 2. तो its integration with respect to x, ax cube by 3 plus bx square by 2 plus cx plus d, where a b c d other constants. So it is a third degree polynomial. Okay. 9. If g is an antiderivative of f, then show or then g plus c also an antiderivative of f. If g is an antiderivative of f, then g plus c also an antiderivative of f, because derivative of g plus c is equal to derivative of g is equal to f. Therefore integration of f is equal to g plus c. So these are the some facts of differentiation and integration. Next देखो, evaluate question number 1. Evaluate integration 2 to the power x minus 3 to the power x whole square divided by 6 to the power x dx. Integration 2 to the power x minus 3 to the power x whole square divided by 6 to the power x whole into dx. So first a minus b whole square formula, use the a minus b whole square formula. So this is 2 to the power x whole square, that is 2 to the power 2x. 2 to the power 2x plus 3 to the power 2x minus 2 into 2 to the power x into 3 to the power x whole divided by 6 to the power x whole into dx. Okay, so is equal to, separate this, separate कर दियो, integration 2 to the power 2x divided by 6 to the power x means 2 to the power x into 3 to the power x. 6 to x means 2 to the power x into 3 to the power x plus 3 to the power 2x divided by 2 to the power x
2 to power x into 3 to power x minus 2 into 2 to power x into 3 to power x divided by 2 to power x into 3 to power x whole into dx. तो इज इक्वल टू 2 ट्रेस कैंसिल कर दियो, 2 ट्रेस कैंसिल हो, तो इंटीग्रेशन 2 to power x डिवाइड बाय 3 to power x प्लस ये 3 ट्रेस कैंसिल कर दियो 3 to power x डिवाइड बाय 2 to power x माइनस टोटली कैंसिल हो खाली 2 रहिबो होल इनटू dx. तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/3 होल टू पावर x प्लस 3/2 होल टू पावर x माइनस 2 होल इनटू dx. तो यूज 8/x फार्मूला. तो 8/x इंटीग्रेशन है 8/x डिवाइड बाय ln है. तो ये भी सही आंसर है 2/3 होल टू पावर x डिवाइड बाय ln 2/3 प्लस 3/2 होल टू पावर x डिवाइड बाय ln 3/2 माइनस 2 इज कांस्टेंट. तो 2 dx इंटीग्रेशन 2x प्लस c. तो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ a tan x प्लस b cot x होल स्क्वायर. सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ a tan x प्लस b cot x होल स्क्वायर इंटू dx. दिस आल्सो a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला. तो यूज a प्लस b होल स्क्वायर. तो इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2ab tan x इंटू cot x होल इंटू dx. ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं. तो आम कौन कर कन्वर्ट करदे tan स्क्वायर एक्स मीन्स x स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो दिस इज a स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस b स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर मध्य फार्मूला नहीं. तो cot स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं. तो आपको आम कौन करिया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करदे प्लस दिस इज 2ab बिकॉज tan x इंटू cot x इज इक्वल टू 1. तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो. तो a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab होल इंटू dx. ओके, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन कर देले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल इंटू dx. ओके, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इज कांस्टेंट. तो sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन मीन्स tan x बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स. तो a स्क्वायर इज कांस्टेंट sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन tan x. तो दिस इज a स्क्वायर tan x प्लस b स्क्वायर इज कांस्टेंट cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस cot x. तो दिस इज माइनस b स्क्वायर cot x एंड माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये a माइनस b होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर इज कांस्टेंट. तो माइनस ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर रहेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c. तो दिस इज द आंसर. तो सेकंड आंसर कौन सा a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर cot x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर x प्लस c. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर इंटीग्रेशन x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. This is an improper fraction. Because
degree of numerator is greater than the degree of denominator. If the degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, that is known as improper fraction. तो improper fraction को आम कौन करिया proper fraction करिया. तो proper fraction करिया केमिति ना numerator को divide करिया कहा द्वारा denominator तो किसी question पाइबो किसी remainder पाइबो. ओके तो ठीक अच्छी तो divide कर दे तो x4 plus x cube plus x square plus x प्लस 2 को डिवाइड करिया कहा द्वारा x स्क्वायर प्लस 1 द्वारा. तो डिवीजन केमी देख ना x4 को x स्क्वायर डिवाइड करियो मीन आर हाईएस्ट डिग्री को आर हाईएस्ट डिग्री डिवाइड करियो. तो x4 बाय x स्क्वायर गले x स्क्वायर तो x स्क्वायर गला ये हला x4 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस रहला कोन s क्यूब प्लस x प्लस 2 अगेन s क्यूब को डिवाइड कर x स्क्वायर द्वारा कोन आसीबो प्लस x. तो s क्यूब प्लस x प्लस 2 माइनस 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 सॉरी दिस इज नहीं. ओके तो कैंसिल रहला केते 2 रहला एठी. तो देयरफॉर मास लिखाबे 2 इज द कांस्टेंट टर्म नहीं की. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x मींस डिवाइड कौन डिविडेंड प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर होल इंटू कौन dx कौन कर कहल ना डिविडेंड प्लस डिवाइजर डिवाइड बाय सॉरी डिविडेंड प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस कले s स्क्वायर इंटीग्रेशन s क्यूब बाय 3 प्लस x इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इज कांस्टेंट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 बाय tan इनवर्स x. सॉरी integration of x square plus 1 means tan inverse x plus c. This is the question number 3. Next question number 4. Question number 4 देखो ठीक है 4 number integration root 1 minus x square plus x square by root 1 minus x square dx. Simply find the LCM. आ किसी नहीं तो एलसीएम कला पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स तो कैंसिल खड़ी तो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए 5 नंबर गिवन f डैश x इज इक्वल टू p sin x प्लस q cos x. दिस इज f डैश x गिवन अच्छे f डैश 0 मीन्स x जगह 0 पुट करा तो इज इक्वल टू p sin 0 प्लस q cos 0. But f dash 0 is given 4. So this is 4 is equal to sin 0 is 0 plus cos 0 is 1. So q. That implies q is equal to 4. Q is equal to what? 4. अच्छा f dash x means f dash x is equal to p sin x plus q cos x. तो f dash x means d by dx of fx is equal to p sin x प्लस q cos x. तो implies dfx is equal to p sin x प्लस q cos x होल इंटू dx. dx टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिकॉज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑपोजिट इच अदर. तो इंटीग्रेशन ऑफ dfx is equal to integration of p sin x plus q cos x whole into dx. तो integration of dfx means simply fx because integration of dx कल x integration of dy कल y integration d sin dfx कल fx. तो is equal to minus p cos x plus q sin x plus c. minus p cos x plus q sin x plus c. This is equation 1. okay अच्छा तो पुट x is equal to 0
देयरफॉर एफ ऑफ 0 मीन्स एक्स जरा कौन पकेली मु एक्स जरा 0 पकेली तो ये माइनस पी कॉस 0 इज 1 प्लस 0 प्लस सी कॉस 0 इज 1 एक्स जगह 0 पुट कले कॉस 0 इज 1 साइन 0 इज 0 तो आसला तो इम्प्लाइज व्हाट इज एफ ऑफ 0 इज 2 इज इक्वल टू सी माइनस पी दिस इक्वेशन 2 नेक्स्ट पुट एक्स इज इक्वल पाई बाय 2 also f of pi by 2 तो ये माइनस पी cos pi by 2 cos pi by 2 0 sin pi by 2 1 plus c तो what is given this is 3 given तो 3 is equal to cq plus c this is the 3 but q is equal to what q is equal to 4 but q is equal to 4 but q is equal to 4 अच्छे तो इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 तो इम्प्लाई सी इज इक्वल टू -1 सीटा के आसला हमर -1 आसीगला ओके तो सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड पी सीटा कौन आसला कहलो -1 आसीगला तो from 2 c minus p is equal to 2 implies p is equal to c minus 2 तो p is equal to what is c -1 minus 2 is equal to -3 c minus p is equal to 2 तो 2 तो p is equal to c minus 2 तो c what is c सीटा -1 तो therefore p is equal to -3 therefore f of x is equal to f of x कौन माइनस p cos x तो p टा -3 तो -3 cos x माइनस पी जगह -3 पड़गला प्लस क्यू साइन एक्स क्यू मीन्स 4 साइन एक्स प्लस सी मीन्स -1 तो दिस इज एफ एक्स पी कॉस एक्स फ्रॉमिंग है देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस -1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखा टिके इंटीग्रेशन 3 to power x into 9 to power minus x by 2 9 to power minus x by 2 dx ये सिंपली दिस नहीं 3 into 9 रे पावर हाफ माइनस हाफ होल रे पावर x dx और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 into ये 1 by 3 9 to power minus हाफ 9 रे हाफ कहले 3 9 to power minus हाफ कहले 1 by 3 whole into whole to x dx 3 cancel this is कौन आसीबो 1 dx is equal to x plus c ओके तो ऑल क्वेश्चन सर कंप्लीटेड हो गला तो क्वेश्चन नंबर अगेन 1 देखाउ थरे क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 कर दो हला तो 3 नंबर फर्स्ट कर दियो 3 नंबर इंटीग्रेशन cos x into cos pi over minus x minus sin x into sin pi over minus x divided by cos pi over whole into dx. This is cos a into cos b minus sin a into sin b. तो sin cos of a plus b. तो इंटीग्रेशन cos x into cos pi by 4 minus x minus sin x into sin pi by 4 minus x whole divided by cos pi by 4 into dx. So this is cos a into cos b minus sin a into sin b is equal to cos of a plus b. A means x plus b means pi by 4 minus x. Cos a into cos b minus sin a into sin b. तो cos of a plus b divided by cos pi by 4 into dx तो x x कैंसल तो रहा के देखाओ cos pi by 4 डिवाइड बाय cos pi by 4 into dx ये भी कैंसल तो इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो टिके इंटीग्रेशन e टू पावर log cot स्क्वायर x dx अच्छा e टू पावर log x कहले x e टू पावर log x कहले कौन x
तो कौन आसो दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स dx तो कॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ना डायरेक्ट लिखना ही cos स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx तो cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स -1 dx इंटीग्रेशन x प्लस सी ये क्वेश्चन नंबर 4 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देख टे थर 5 अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स क्यू इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 dx ओके अब सेपरेट कर दियो सिंपली खाली सेपरेट कर एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स क्यू इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 होल इंटू dx तो देख ये कौन आसो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू मीन एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गला तो 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस ये रूट एक्स स्क्वायर -1 कैंसिल 1 बाई एक्स क्यू होल इंटू dx तो 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स दिस इज सेक इनवर्स एक्स प्लस एक्स टू पावर -3 तो एक्स टू पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 प्लस सी आसला के सेक इनवर्स एक्स दिस इज -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी दिस इज द आंसर ये क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देख टे 2 कौन आसला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन अच्छी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन अच्छी किंतु प्रोडक्ट ना तो ये कौन करें तो 1 बाई कर दियो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx तो इज इक्वल टू 1 बाई तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx तो इज इक्वल 1 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 जगह मैं पुट कली डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx आपको सेपरेट कर दियो तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू कौन dx ओके तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर कैंसिल कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कैंसिल तो 1 बाई कॉस स्क्वायर कौन 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर कौन आसला कहल तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस से 1 बाई साइन स्क्वायर कौन कोसेक स्क्वायर एक्स है होल इंटू dx तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 10x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 निजे कर सिंपली यूज द फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b तो cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b गले cos ऑफ a माइनस b तो cos ऑफ ब्रैकेट रे 5x माइनस 4x तो 5x माइनस 4x मीन्स x तो cos x बाई तले हम sin स्क्वायर x cos x बाई कौन हम sin स्क्वायर x तो cos बाई sin कर 1 बाई sin कर cos बाई sin टा कौन आसला cot x 1 बाई sin टा कौन आसो cosec x तो प्रोडक्ट ऑफ cosec x इंटू cot x आसो तो cosec इंटू cot रो इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस सी माइनस cosec x प्लस सी ओके ये क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देख टे तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर दबा तो 6 नंबर क्वेश्चन देख टे द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तार तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहले कौन बुझा पड़ो ना dy बाई dx एट एनी पॉइंट तो आमको dy बाई dx गिवन अच्छी तो dy बाई dx इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिखाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व find the equation of the curve if it passes through the point 0, 1 है तो आम कौन कही फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व कही जो कर्वटा 0, 1 देखिए पास करुँच ओके सॉल्यूशन 6 नंबर देख टे given that slope of the tangent
to the curve is x square minus x, that is dy by dx is equal to x square minus x. So implies dy is equal to x square minus x whole into dx. So implies integrating both side कौन आसो इंटीग्रेशन dy is equal to integration x square minus x whole into dx. तो implies integration of dy means y is equal to this is s cube by 3 minus x square by 2 plus c. Equation 1. Since the curve one टा कौन कर्व इक्वेशन टा तो वन टा पासिंग थ्रू कौन कर्व 1 पासिंग थ्रू the point 0, 1. So equation 1 becomes जेहेतु 0, 1 दे पास कर तो इक्वेशन 1 टा साटिस्फाई करियो कहा को 0, 1 को. तो x जगह 0 पको y जगह 1 पको x जगह 0 y जगह 1 तो 1 is equal to 0 by 3 minus 0 by 2 plus c. This implies c is equal to 1. Hence the required equation is y is equal to s cube by 3 minus x square by 2 plus 1. ये ला required equation. Okay. ये ला question number 6. तो 6 is over. स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन dy by dx. तो dy by dx दिया है हमको dy by dx इज इक्वल x स्क्वायर माइनस x दिया है तो dy इज इक्वल x स्क्वायर माइनस x होल इनटू dx क्रॉस मल्टीप्लाई करा है गला हैला तापर इंटीग्रेशन करा हला बोथ साइड तो y आसी गला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करिया और क्वेश्चन नंबर 5 करना हले. क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सही है तावळे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम do yourself है 5 में करूनी do yourself same f dash x means d by dx of fx दिया है d by dx of fx is equal to this तो dfx equal to whole into dx है लगी तापर इंटीग्रेशन करिवो तो fx is equal to e to power x plus tan inverse x plus c x जगह 0 पकेबो fx जगह 1 पकेबो f of 0 टा 1 निजे करिवो हला. तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखा टिके इंटीग्रेशन sin 4th x plus cos 4th x divided by sin square x into cos square x whole into dx. अच्छा a fourth plus b fourth कहले a square plus b square whole square minus 2a square b square plus b square whole square minus कौन 2a square b square. तो सही आंसर पक्का था लेठी this is sin square x plus a square plus b square a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. सही फॉर्मूला पके हम देखा ताले एटा का आसीबो sin square x cos square x whole square minus 2 sin square x into cos square x देखो डिवाइड बाय sin square x into cos square x into कौन dx. तो this is 1 तो 1 minus 2 sin square x cos square x divided by sin square x into cos square x dx. आगे सेपरेट कर दियो सेपरेट करो तो इज इक्वल टू 1 by sin square x into cos square x dx minus इंटीग्रेशन 2 dx कैंसिल करा कटि जीव तो 1 by 3 खाली ना नहीं तो दिस इज इक्वल टू 1 कहले sin square x plus cos square x divided by sin square x into cos square x into dx. 1 means sin square x plus cos square x minus this is 2x plus c. तो आपको सेपरेट कर दिया थे तो sin square x divided by sin square x into cos square x dx plus
cos square x divided by sin square x into cos square x dx minus 2x plus c. Sin square cancel, cos square cancel, तो 1 by cos square means sec square x dx plus 1 by sin square means cos square x dx minus 2x plus c. Sec square x integration 10x cos square ro minus cot x minus 2x plus c. This is the required answer. ये ला क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. 4 इज ओवर. देखो चेक कर दीजिए. नेक्स्ट आसला कौन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. 3 नंबर इंटीग्रेशन x to power 6 plus 1 divided by x square plus 1 dx. This is the improper fraction because degree of numerator is greater than degree of denominator. तो এটা improper fraction. तो फर्स्ट हम reduce to proper form. तो proper form करिए किमिति ना x to power 6 plus 1 को डिवाइड करो x square plus 1 द्वारा. तो x6 को डिवाइड करो x square द्वारा. तो रहला कहते x4. तो x6 प्लस x4 माइनस माइनस. दिस इज माइनस x4 प्लस 1. नेक्स्ट माइनस x4 को डिवाइड कर x स्क्वायर द्वारा. दिस इज माइनस x स्क्वायर. तो माइनस x4 माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस. तो ये कौन था देखो रहा कौन x स्क्वायर प्लस 1. तो ये है x स्क्वायर प्लस 1 रहा कौन माइनस माइनस 0. तो आसला के दिस इज x4 minus x square plus 1 into dx. This is x to the 5 by 5 minus s cube by 3 plus x plus c. 1 into dx integration x plus c. So this is the required answer. नहीं. Next question number 2. 2 देखो देखिए इंटीग्रेशन रूट x plus 1 whole square divided by x into root x plus 2x plus root x dx. Okay. तो this is equal to integration root x plus 1 whole square divided by taking root x is a common from denominator. Root x is common करो denominator रू. तो x plus 2 root x plus 1 whole into dx. तो is equal to root x plus 1 whole square divided by root x and this is equal to root x square plus 2 into root x into 1 plus 1 into dx. तो इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू दिस इज रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स. इटा कैंसल देख. तो आसला इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस हाफ डी एक्स. एक्स टू पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन कौन आसो एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज दिस इज 2 रूट एक्स. दिस इज 2 रूट एक्स प्लस सी. 2 root x plus c. x to power minus half means x to power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 that is 2 root x plus c. ये ला क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखो टिके. 1 कौन आसला इंटीग्रेशन a sin qx प्लस b cos qx डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx. सिंपली कौन कर सेपरेट कर दिया किसी नहीं खाली सेपरेट. तो a sin qx डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन b cos qx डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. देख ताले साइन क्यू अच्छी साइन स्क्वायर अच्छी. तो साइन स्क्वायर कैनसल होटा कन्स्टांट बाहर आसीगला साइन एक्स बै cos स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर कैनसल होगला डी एक्स. ये बी बाहर आसीगला cos स्क्वायर कैनसल कर दियो आ गोटे cos एक्स ऊपर हो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए कन्स्टांट साइन एक्स बै cos स्क्वायर. cos स्क्वायर cos इंटू cos कर दियो. तो साइन बै cos एक्स आ गोटे 1 बाई cos एक्स होल इंटू डी एक्स. ये भी सेया करो cos एक्स बाई साइन एक्स
इंटू 1/sin x होल इंटू dx। ओके, तो इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन साइन बाई कॉट है 10x, तो 10x इंटू 1/cos है sec x इंटू dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन cos बाई साइन है cot x 1/sin है cosec x इंटू dx इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x के लिए sec x, तो sec x प्लस c sec x एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x के लिए माइनस cosec x, तो माइनस b cosec x प्लस c दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो फास्ट आम कौन कले सेपरेट करदे, जहाँ जहाँ कि कैनसल करते कैनसल करदे, साइन बाई कॉस जगह 10 1/cos जगह सेक, कॉस बाई साइन जगह कॉट 1/sin जगह कोसेक, देन यूज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फास्ट 2 कर दो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स नॉट साइन एक्स, दिस इज साइन 2x कर दिया, साइन 2x, दिस आल्सो 2x, दिस आल्सो 2x, दिस आल्सो 2x। ओके, 2x प्लस √1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई √1 प्लस साइन 2x माइनस √1 माइनस साइन 2x। ओके, तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस इज dx। अच्छा, वी नो दैट 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x पहले cos x प्लस साइन x रो होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 2x कहले cos x माइनस साइन एक्स रो होल स्क्वायर, तो तार रूट कहले सिंपली cos x प्लस साइन x, दिस इज √1 प्लस साइन 2x कहले सिंपली cos x प्लस साइन x, तो ये आसला कौन cos x माइनस साइन x, √1 प्लस साइन t सार रूट में तार भी रूट डिवाइडेड बाई ये आसो cos x प्लस साइन x माइनस दिस इज cos x माइनस साइन x होल इंटू dx, तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो साइन x को साइन x कैंसिल, दिस इज cos x को cos x कैंसिल, तो 2 cos x डिवाइड बाई 2 साइन x, 2 साइन x इंटू dx 2 कैंसिल, तो दिस इज इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स cot x इंटू dx, तो x dx, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 कौन कर 1 प्लस साइन 2x कर ले, 1 प्लस साइन 2x 1 मीन्स cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x मीन्स 2 साइन x इंटू cos x, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b होल स्क्वायर, तो आर रूट कले आर रूट काट आर रूट कले आर रूट बाहर, तो सिंपली कौन आसो 1 प्लस cos साइन 2x रूट मीन्स cos x प्लस साइन x, 1 माइनस साइन 2x रूट मीन्स cos x माइनस साइन x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये भी सही है 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू dx कंडीशन दिया है, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट देखो -π/4 टू +π/4, दिस इज -π/4, दिस इज +π/4, तो -π/4 टू +π/4 मीन्स cos इज ग्रेटर देन साइन, इन दिस इंटरवल cos x इज ग्रेटर देन साइन x। ओके, तो √1 माइनस साइन 2x कहले आम कौन ना cos x माइनस साइन x ना है कि √1 माइनस साइन 2 कौन ना cos x माइनस साइन x, √1 प्लस साइन 2 टा कौन cos x प्लस साइन x। ओके, तो दिस इज ताले पुट कर दियो ऊपर है cos x
माइनस साइन एक्स तले है कौन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। ओके, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन cos x, तो 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x होल इंटू डी एक्स। कौन कली ना डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई cos बाई cos बाई cos बाई cos, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस x, और यूज द फॉर्मूला ना हलो टिके एडजस्ट कर टिके, दिस इज कौन आसो कहलो tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x होल इंटू डी एक्स। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, तो tan कैंसिल तो आसला कहते पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो पाई बाई 4 टा कांस्टेंट पाई बाई 4 एक्स माइनस एक्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो दिस इज द आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में कौन करवा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड।